शिखा हो गया शुरू के हाँ करो अनम्यूट जाओ Yes, good morning everyone. So we will continue with the topic solid state. The topic in solid state we will take is imperfection imperfection or defects in crystal lattice. अभी नहीं आ रहा ना ठीक है In crystal lattice. So imperfection or defects in crystal lattice. So this topic, imperfection or defects in crystal lattice, the real or natural crystal always carry some imperfection. The real or natural crystal always carry some defects or imperfection in it. And it is due to, क्या रहेगा, what could be the reason for imperfection, है ना. कोई भी बोलते ना कि जो भी नेचुरल रहेगा या रियल होगा क्रिस्टल, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट या imperfection रहेगा. And it is due to the irregular stacking of particles in a crystal lattice. So it is due to irregular stacking. Stack करते एक के ऊपर एक हम, irregular stacking of particles in crystal lattice. Due to this irregular stacking of particles in crystal lattice, we see some imperfection or defects. ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना. So due to some irregularity of arrangement of particle in a crystal, we observe some defects or imperfection, and this defect or imperfection is during the process it occurs. ये important factor है, it occurs, यानी जो it occurs से मतलब है जो defect और imperfection है, it occurs during the process of crystallization. It occurs during the process of crystallization. So when we crystallize any solid, during that process, this kind of imperfection or defects generates. अब crystallization में होता कैसा है? What is the process of crystallization? जैसे आप crystallization घर में अगर देख सकते हैं तो you make a syrup of sugar and keep it in the open atmosphere for few hours. तो आप क्या देखेंगे उसमें कि उसका crystallized form आपको दिखेगा. तो that crystallization if that crystallization is carried out under controlled conditions, then we get perfect crystal. And if condition varies, then defect starts generating within a crystal.
So once again, the defect generates during the process of crystallization. If we carry out fast crystallization, there are definitely going to be some defects in the crystal lattice. To avoid this creation of defects in a crystal molecule, we have to carry out crystallization very slowly. And perfect crystallization, if we say perfect crystallization is to be carried out at 0 degree centigrade. 0 degree centigrade, and at a very slow pace. At a very slow pace. तो जितना स्लोली क्रिस्टलाइजेशन करेंगे और टेम्परेचर 0 डिग्री रखेंगे, तो हमें उतना परफेक्ट क्रिस्टलाइजेशन मिलेगा. Okay, so to get zero defect crystal, we need to carry out crystallization at 0 degree centigrade and at a very slow pace. तो स्लो प्रोसेस होना चाहिए और 0 डिग्री मेंटेन रहेगा तो परफेक्ट क्रिस्टलाइजेशन पॉसिबल है. और परफेक्ट क्रिस्टलाइजेशन नहीं है यानी उसमें इम्प्यूरिटीज, इम्परफेक्शंस, ये सब जनरेट होते जा रहे हैं. सो दिस इज व्हाट द डिफेक्ट इन क्रिस्टल लैटिस. सो डिफेक्ट की अगर डेफिनेशन हम बोले क्रिस्टल लैटिस में, तो इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, irregularity in the arrangement of constituent particles of a solid crystals is known as crystal defect or imperfection. So irregularity in the arrangement, वही मैंने लिखा था. अगर definition आपसे कोई पूछे what is the definition of defects in a crystal lattice, तो आप लिख सकते हैं irregularity. ये वर्ड से शुरू करें, irregularity in the arrangement of constituent particles, irregularities in the arrangement of constituent particles in a solid crystal is known as defects or imperfection in crystal lattice. So this is what the definition. और जब हमने क्रिस्टल कैसे बनता है इसका एक हमने डायग्राम भी बनाया था. उसमें क्या लिया था हमने, यहाँ लिया था कुछ इस तरह से लैटिस पॉइंट्स, और ये लैटिस पॉइंट्स को ऑक्यूपाई करने वाले थे. क्या करने वाले थे? ऑक्यूपाई बेसिस. तो ये है लैटिस पॉइंट्स, और उसको ऑक्यूपाई करेंगे बेसिस. बेसिस यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. और जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करेंगे तो आपको एक परफेक्ट क्रिस्टल मिलेगा. तो कुछ इस तरह से हमने एक डायग्राम भी ड्रॉ किया था. So like this we get a perfect crystal where
lattice points are occupied by basis, that is constituent particles. अब constituent particles ये तो आपको पता है, it could be an atom, ion or even molecule also. So these constituent particles basis they occupy. अब अगर ये basis का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा तो उसमें डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा. जैसे एक यहाँ पर ड्रॉ करें, अभी हमने एक वैकेंसी यहाँ पर छोड़ दिया, एक पार्टिकल ड्रॉ नहीं किया, ये डिफेक्ट हो गया. एक और पार्टिकल देखते हैं, यहाँ पर ये भी वैकेंसी होगी, ये भी वैकेंसी हो गई, तो डिफेक्ट आ गया. बस इसी को हमें पढ़ने का है. तो डिफेक्ट्स इन अ क्रिस्टल लैटिस इज व्हाट? Irregularities in the arrangement of constituent particles in a solid crystal is known as defects or imperfection in crystal lattice. So डायग्राम से समझ में आ गया हमें. सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी है, and we can go in detail now. So this is what the creation or the defect generates in a crystal lattice. Okay. After this, what are the causes for crystal defects in crystal lattice? Two causes. One is the controlled condition if not maintained, and another fast crystallization. If we carry out fast crystallization and temperature is not maintained zero, then defects or imperfection starts generating in crystal lattice. So this is what the cause, the definition, and the defect is how generated in a crystal lattice. Now types of defects. There are three types of defects. First one is point defect. Second is line defect, and the third is plane defect. Plane defect. प्लेन का स्पेलिंग यही दिया है क्या? PLAIN. Plane defect. So three kind of defects we see in a crystalline solid: point defect, line defect, and plane defect. In our syllabus, we will take only this point defect. So out of these three, we will take point defect and we'll discuss this. A point defect बहुत इजी तरीके से फिर से इस डायग्राम में अपने को दिख रहा है कि जो लैटिस पॉइंट्स है वो ऑक्यूपाई कौन करते हैं? बेसिस. वो ऑक्यूपाई करने की इरेगुलरिटी, ऑक्यूपाई रेगुलर तरीके से करेंगे तो परफेक्ट क्रिस्टल बनेगा. वो जब बेसिस इरेगुलर तरीके से यहाँ ऑक्यूपाई करेंगे पॉइंट्स को, कौन से? लैटिस पॉइंट्स को, तब उसे हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट. फिर से एक बार, पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होगा? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट्स इन अ इर्रेगुलर मैनर, देन पॉइंट डिफेक्ट जनरेट्स. तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं. व्हेन बेसिस, that is constituent particles occupy lattice points in an irregular manner, then it is
called as, yes, called as point defect. तो ये point defect की भी definition आ गई आपके पास, defect की भी definition आ गई. सही है. Point defect, when lattice points of a crystal lattice occupies by constituent particles in an irregular manner, then that defect is known as point defect. Then it is known as point defect. तो ये हो गई basic information, imperfection or defects in crystal lattice in the topic crystalline solids. Now ये point defects के भी और कुछ types हैं, उसको देखते हैं. There are 4 types of point defects. 4 or 3 types of point defect. One is stoichiometric point defect. Another is non-stoichiometric point defect. And third is impurity defect. तो यहीं पर लिखते हैं point defect. There are 3 types. There are 3 types of point defect. The first one is stoichiometric point defect. Next is impurity defect. Some impurity comes in place of constituent particles. That is intentional or it is some natural also. कुछ impurities को हम deliberately add करते हैं to improve the quality, to improve the reactivity of certain solid substance. जैसे आप बतला सकते हैं मुझे impurity defect में, जितने alloys हम बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, एक मेटल में दूसरा मेटल, एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड मिक्स करते हैं, सो दैट कि फर्स्ट वाले सॉलिड की मेटल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए. तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. उसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रास, है ना. ये ब्रास क्या है, बेसिकली इट इज ऑफ कॉपर. इसमें जिंक की इम्प्यूरिटी ऐड कर देते. Zinc is added as an impurity and that will make the alloy brass. क्योंकि कॉपर और जिंक का जो एटॉमिक साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो वो बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं. अगर साइज में डिफरेंस रहा तो फिर वहां पर कैसा होगा, अगर साइज एक ही टाइप के सब एटम है, उसी टाइप का अगर एटम हमने रिप्लेस किया तो उसका वॉल्यूम, उसका स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा. अगर आपने थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा साइज का एटम उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है वो इरेगुलर हो जाएगा. स्ट्रक्चर इरेगुलर हो गया यानी उसके डिफेक्ट्स बढ़ते जाते हैं. तो ब्रास इज व्हाई कंसिडर्ड एज ए बेस्ट एलॉय बिकॉज जिंक और कॉपर का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम है. क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है और जिंक का 30 है, तो एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास भी ऑलमोस्ट सेम है. तो इसीलिए इसका जो एलॉय बनता है ब्रास, वो बेस्ट एलॉय माना जाता है. ओके, कमिंग बैक टू, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट. वन इज स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड इज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट एंड थर्ड इज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. अब ये क्या होता है देखते हैं इसको डिटेल में. We will discuss these 3 point defect, and the first we will take is stoichiometric point defect. Stoichiometric means what? Stoichiometric point defect. What do you mean by stoichiometric means what?
इन अ बैलेंस फॉर्म, है ना। तो जो मेटल क्रिस्टल बन रहा है उसमें नंबर ऑफ आयंस, नंबर of cations and anions if maintained properly, तो आज आते रहेंगे वो सब। कितना बज गया? What's the time? Stoichiometric point defect, तो क्या रहेगा? स्टाइचोमेट्री यानी इन अ मॉलिक्यूल एटम्स हैव अ फिक्स रेशियो, in a molecule atoms have a fixed ratio. If that ratio is maintained, we call it as a stoichiometric ratio of atom. जैसे NaCl 1 1, या अब इसको लिखेंगे BaCl2, तो 1:2 का रेशियो। आप AlCl3 लिख दीजिए 1:3 का रेशियो। So in a molecule these ratios are fixed. If something happens to that stoichiometric arrangement, something happens to that ratio of atoms in the arrangement, then there will be some defects get created. तो जब ये रेशियो डिस्टर्ब होगा तब वहां पर हमें डिफेक्ट मिलने वाला है। जैसे अब डायग्राम के थ्रू ही इसको समझेंगे हम। एक स्टाइचोमेट्री, जैसे ये नंबर ऑफ एटम्स, ये इनका रेशियो फिक्स है। अब सभी सारे सर्कल तो एक जैसे साइज के बन ही नहीं सकते ना, शायद मुझसे तो बनेंगे नहीं, आप लोग से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। सो ये एक परफेक्ट अरेंजमेंट हो गया। अब स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा? इसमें जो फर्स्ट टाइप है, स्टाइचोमेट्रिक के भी और टाइप है, एक है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, अब वैकेंसी डिफेक्ट कैसे होता है ये देखेंगे। क्या होगा? ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, उसके नाम से ही शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। क्या होगा? वैसे बोल सकते हैं आपके हिसाब से क्या, व्हाट कुड बी द वैकेंसी डिफेक्ट? अगर परफेक्ट क्रिस्टलाइजेशन होगा तो ऐसे अरेंजमेंट रहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन some particles are missing from their place. During crystallization some particles they are missing from their place and that creates the vacancy. तो ये स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है। स्टाइचोमेट्रिक यानी जो रेशियो है वो मेंटेन रहेगा, जो रेशियो है वो मेंटेन रहेगा, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाएगा। रेशियो कैसे मेंटेन है? जितने कैटायन है उतने एनायन रहेंगे, जितने पार्टिकल्स होना चाहिए था उसका रेशियो वैसा ही रहेगा। जैसे यहाँ पर 1:3 अगर हम कंसीडर करें तो इसके 10 मोल्स थे, 2 मोल कम हो गए, 8 मोल्स आ गए, 2 मोल की वैकेंसी क्रिएट हो गई, लेकिन उसका रेशियो तो वही रहेगा, 1:3 रहेगा। सही है? तो stoichiometry defect means the ratio of atoms in molecule of a crystal, solid crystal, that ratio is maintained. That ratio is maintained, only some vacancy get created during the process of crystallization. And how does that vacancy gets created? By missing some, yes, some particles in the regular arrangement. Missing of some particles in the regular arrangement during the process of crystallization create certain vacancy, and therefore it is known as vacancy defect. Is it clear? Vacancy defect. And this defect will maintain the ratio as it is. One aspect, ratio of atoms should be maintained,
ratio should be maintained. Another, what happens to the mass of it? What happens to the volume of it? What happens to the density of it? Okay. So what happens to the mass of it? Mass कम हो जाएगा. अरे वैकेंसी आ गई ना, तो mass will be lower down. तो decrease in mass. अब मास अगर डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? डेंसिटी भी डिक्रीज होगी. डिक्रीज इन डेंसिटी. व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. वैकेंसी आने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. ऐसे कैसे इंक्रीज होगा? बोलो तो जरा, समझा दो. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना डेंसिटी को वॉल्यूम. डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यहाँ पर ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर चेंज हुआ क्या? इसमें बाकी एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हुआ क्या? रेशियो चेंज हुआ क्या? तो फिर वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? वहां पर कुछ वैकेंसी दिखेगी अपने को, खाली बॉक्सेस दिखेंगे, वैकेंट पॉइंट्स दिखेंगे हमको, लेकिन वॉल्यूम उसका वही रहेगा. थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है वैकेंसी आने के कारण, होगा ना सॉफ्ट. जैसे हम लोग कुछ अरेंजमेंट करके देखें, एकदम जैसे वो क्रिस क्रॉस, अगर वुडन स्टिक को हमने फिक्स किया और वो बराबर डिस्टेंस पे फिक्स रहेंगे तो उसमें टफनेस आती है. जैसे ये स्लैब डालते हैं, आयरन बार उसमें फिक्स करते हैं तो बराबर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं. आयरन बार्स का वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं. सपोज उसमें से 2 बार हमने निकाल लिए, वैकेंसी आ गई, या 2 जगह हमने कट करके वो पीसेस को निकाल लिए, तो वहां पर ब्लॉक्स आ जाएंगे. उसका वॉल्यूम कम होगा क्या? इतना था, इतना ही रहेगा. वो बीच में गड्ढे दिखेंगे अपने को. आर यू गेटिंग इट? तो दैट इज व्हाट द वैकेंसी इज क्रिएटेड हियर. तो वॉल्यूम विल नॉट चेंज, ओनली मास विल चेंज, क्योंकि जितने 10 पार्टिकल होने थे उसके बदले 8 ही पार्टिकल है वहां. आउट ऑफ 10 ओनली 8 आर देयर. एक्सपेक्ट करते थे 10 मोल्स होने चाहिए, बट देयर आर ओनली 8 मोल्स. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने से मास कम, मास कम होने से डेंसिटी कम, लेकिन वॉल्यूम वैसा ही रहेगा. वॉल्यूम रिमेन्स सेम. आ गया क्या ये वैकेंसी डिफेक्ट समझ में? ठीक से आ गया एकदम. डायग्राम बना सकते हैं आप, तो ये डायग्राम बना लीजिए और यहाँ पर ये वैकेंसी को लेबल कर दीजिए. या बड़ा डायग्राम बनता है तो यहाँ वैकेंसी वैकेंसी करके लिख दीजिए. ये वैकेंसी आ गई. बड़ा डायग्राम नहीं है तो बाहर वैकेंसी लिख दीजिए. और ये क्रिस्टल लैटिस आ गया आपका. 4 टाइप्स पॉइंट डिफेक्ट के. डिफेक्ट 3 टाइप्स है. पॉइंट डिफेक्ट्स 3 टाइप्स के. कौन कौन से बोले? स्टाइचोमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइचोमेट्रिक. तो 4 कुछ तो है ना, तो वो है स्टाइचोमेट्री 4 टाइप्स. स्टाइचोमेट्री के 4 टाइप्स है. पहला है वैकेंसी, दूसरा क्या है फिर? सेल्फ इंटरस्टिशियल. थर्ड है शॉर्टकी और फोर्थ है फ्रेंकल. ये 4 टाइप्स है. स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के. ये डायग्राम निकाल सकते हैं आप, समझ गया है आपको? इसको ऐसे ही रहने देते हैं. वैकेंसी डिफेक्ट
तो उसमें क्या क्या लिखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट में? इट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर आपने फास्ट क्रिस्टलाइजेशन किया तो वैकेंसी डिफेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन द रेशियो ऑफ एटम रिमेन्स सेम, but there is a decrease in mass, decrease in density, but volume remains the same. This is what vacancy defect. अच्छा, during this एक और पॉइंट था जो हमको याद रखना है कि जब ये लैटिस, क्रिस्टल लैटिस बनता है, क्रिस्टल लैटिस when we get crystal lattice, its neutrality is always maintained. Neutrality is always maintained in spite of all the defects. Neutrality of metal or neutrality of solid is always maintained. कि कितने भी डिफेक्ट आए, वो जो न्यूट्रलिटी है उसकी वो मेंटेन रहना चाहिए। अगर वो मेंटेन नहीं रही तो वो फिर एक कैटायन में या फिर एक एनायन में कन्वर्ट हो जाए। सो दैट हैज टू बी मेंटेन व्हेन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ओके, सो वैकेंसी डिफेक्ट इज द फर्स्ट पॉइंट वी हैड सीन। Now we will take the second one, that is the self-interstitial defect. What do you mean by interstitial defect? Interstitial ये word का meaning तो बता दो मुझे। ये small a, अब small b is self-interstitial. Interstitial space क्या होती है? जैसे ये एक रेगुलर अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, इसके बीच में जो जगह है उसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। ये इंटरस्टिशियल स्पेस, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस, ये इंटरस्टिशियल स्पेस, ये इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसे हम जब चेयर्स वगैरह अरेंज करते हैं तो एक रो लगा दिया, 2-3 ऐसे लगाते, उसके बीच में कुछ जगह रखते हैं सो दैट एक लॉबी बना देते हैं आने जाने के लिए। वैसे ही रो में भी एक रो ये रखा, दूसरी रो के बीच में भी जगह रखते हैं हम, और वो एक लाइन से फिक्स रखते हैं सो दैट कि अगर नेक्स्ट पर्सन को अगर उठना है तो वो सामने वाले को डिस्टर्ब ना करे या उसके पीछे बैठा हुआ वो डिस्टर्ब ना हो। ऐसे ही अरेंजमेंट करते हैं हम, ऐसा ही अरेंजमेंट करते हैं हम